السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستوں، میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 14، علم کی فرمانی کا بیان۔ حدیث نمبر 73، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں ایک بار سو رہا تھا، میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پی لیا، یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے جاری ہونے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ فائدے: معلوم ہوا کہ خواب میں دودھ پینے کی تعبیر علم کا حاصل کرنا ہے، نیز اگر دودھ کی سیرابی کو ناخنوں میں دیکھو تو اس سے علم کی سیرابی اور فروانی زیادتی مراد لی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 73، صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 15، سواری وغیرہ پر سوار رہ کر خطوہ دینا۔ حدیث نمبر 74، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے وقت مینا میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے سوال پوچھ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر مڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا علم نہ ہونے سے میں نے کنکریاں مارنے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن آپ سے جس بات کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لیا بعد میں، تو آپ نے فرمایا، اب کر لو، کچھ عرض نہیں۔ حدیث نمبر 74، صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 16، جس نے ہاتھ یا سر کے اشارہ سے سوال کا جواب دیا۔ حدیث نمبر 75، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آنے والے زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے غالب ہوں گے اور حرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح ترچھا اشارہ کرنے کے فرمایا جیسے کہ آپ کی مراد قتل تھی۔ حدیث نمبر 75۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ باب 16، جس نے ہاتھ یا سر کے اشارہ سے سوال کیا جواب دیا۔
अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई, वह नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा, लोगों का क्या हाल है, यानी वो परेशान क्यों है? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी देखो सूरज ग्रहण लगा हुआ है। इतने में लोगों सूरज ग्रहण की नमाज के लिए खड़े हुए तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, ये ग्रहण क्या कोई अजाब या क़यामत की निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया कि हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़े हुए गए, यहाँ तक कि मैं बेहोश होने लगी तो मैंने अपने सर पर पानी डालना शुरू कर दिया। जब नमाज खत्म हो चुकी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और फरमाया, जो चीजें अब तक मुझे ना दिखाया गई थी उन्होंने मैंने अपनी इस जगह से देख लिया है, यहाँ तक कि जन्नत और दोजख को भी, और मेरे तरफ ये वही भेजी गई कि कब्रों में तुम्हारी आजमाइश होगी, जैसे मसीह दज्जाल या इसके करीब फितने से आजमाए जाओगे। रवाबी कहता है, मुझे याद नहीं कि हजरत अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा था और कहा जाएगा कि मुझे उस आदमी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है। ईमानदार या यकीन रखने वाला रवाबी कहता है कि मुझे याद नहीं अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा था। कहेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है जो हमारे पास खुली निशानियां और हिदायत लेकर आए थे। हमने उनका कहा माना और उनकी पैरवी की। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बारे ऐसा ही कहेगा। चुनांचे उससे कहा जाएगा, तू मजे से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है और मुनाफिक या शक करने वाला। रवाबी कहता है, मुझे याद नहीं कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा था। कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, हाँ लोगों को जो कहते सुना मैं भी वही कहने लगा। फायदे इस हदीस से कब्र के अजाब और उसमें फरिश्तों का सवाल करना साबित होता है। निज जो इंसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर शक करता है वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। और ये भी मालूम हुआ कि हल्की बेहोशी पड़ने से वजू नहीं टूटता। हदीस नंबर 76 सही बुखारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कोई मसला पेश आने पर सफर करना और अपने घर वालों को तालीम देना। हदीस नंबर 77। उकबा बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अबू इहाब बिन अजीज की बेटी से निकाह किया। फिर एक औरत आई और कहने लगी कि मैं उकबा और उसकी बीवी को दूध पिलाया है। उकबा ने कहा कि मुझे तो इल्म नहीं है कि तूने मुझे दूध पिलाया है और न पहले तुमने इसकी खबर दी। फिर उकबा सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मनव्वरा आ गए और आपने मसअला पूछा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उस औरत से कैसे मिलेगा जबकि ऐसी बात कही गई है। आखिर उकबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने
उस औरत को छोड़ दिया और उसने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। फायदे, इस हदीस से उन शकों की तफसीर होती है जिनसे बचने को कहा गया है। हदीस नंबर 77 सही बुखारी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 18 इल्म हासिल करने के लिए बारी बांधना। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी बनु उमैया बिन जैद के गांव में रहा करते थे, जो मदीने की बुलंदी की तरह था, और हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारी बारी आते थे। एक दिन वो आता और एक दिन मैं, जिस दिन मैं आता था उस रोज की वही वगैरह का हाल में उसको बता देता था, और जिस दिन वो आता वो भी ऐसा ही करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा अंसारी दोस्त जब वापस आया तो उसने मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहने लगा कि वो उमर यहाँ है। मैं घबरा कर बाहर निकला आया तो वो बोला, आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है। वो बोली, मुझे इल्म नहीं है। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और खड़े खड़े अर्ज किया कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया, नहीं। तो मैंने मारे खुशी के अल्लाहु अकबर कहा। फायदे, मालूम हुआ कि अगर पड़ोसियों को तकलीफ न हो तो छत पर बाला खाना बनाने में कोई हर्ज नहीं। निज बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी के बारे में नसीहत करता रहे। हदीस नंबर 78 सही बुखारी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 19 तकरीर या तालीम के वक्त किसी बुरी बात पर नाराजगी जाहिर करना। हदीस नंबर 79 अबू मसऊद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए नमाज जमात से पढ़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहला आदमी नमाज बहुत लंबी पढ़ाते हैं। अबू मसऊद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत के वक्त उस दिन से ज्यादा कभी गुस्से में नहीं देखा। आपने फरमाया, लोगों तुम दिन से नफरत दिलाने वाले हो। देखो, जो कोई लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए, क्योंकि पीछे नमाज पढ़ने वालों में बीमार, कमजोर और जरूरतमंद भी होते हैं। फायदे, मालूम हुआ कि मस्जिद के इमामों को अपनी पीछे नमाज पढ़ने वालों का ख्याल रखना चाहिए। निज गुस्सा की हालत में फैसला या फतवा देना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। दूसरों को इसकी इजाजत नहीं, मगर ये कि इंसान पर गुस्से का असर न हो। हदीस नंबर 79 सही बुखारी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 19 तकरीर या तालीम के वक्त किसी बुरी बात पर नाराजगी जाहिर करना। हदीस नंबर 80 जैद बिन खालिद जोहनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी हुई चीज के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, उसके बंधन या बर्तन और थैली की पहचान
रख और 1 साल तक लोगों में उसका ऐलान करता रह, फिर उससे फायदा उठा। इस दौरान अगर उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दे। फिर उस आदमी ने पूछा कि गुमशुदा ऊँट का क्या हुक्म है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्सा हुए कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। रवाई को शक है और फरमाया कि तुझे ऊँट से क्या गर्ज है। उसकी मस्क और उसका मोजा उसके साथ है। जब पानी पर पहुँचेगा पानी पी लेगा और पेड़ से चरेगा उससे जोड़ दे, यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पाले। फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा गुमशुदा बकरी? आपने फरमाया, वो तुम्हारी या तुम्हारे भाई असल मालिक या भेड़िया की है। फायदे, आजकल किसी आबादी में आवारा ऊँट मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिए ताकि मुसलमान का माल महफूज रहे और किसी बुरे आदमी की भेंट न चढ़े। हदीस नंबर 80 सही बुखारी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू मूसा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद ऐसी बातें पूछी गई जो आपके मिजाज के खिलाफ थी। जब इस किस्म के सवालात की आपके सामने तकरार की गई तो आपको गुस्सा आया गया और फरमाया, अच्छा जो चाहो मुझसे पूछो। उस पर एक आदमी ने अर्ज किया, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप हुजाफा है। फिर दूसरे आदमी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप सालिम है जो सैबा का गुलाम है। फिर जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके चेहरे पर गजब के निशान देखते तो कहने लगे, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करते हैं। फायदे, मालूम हुआ कि ज्यादा सवालात के लिए तकलीफ उठाना नापसंदीदा अमल है। हदीस नंबर 81 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 20 खूब समझने के लिए एक बात को 3 बार दोहराना। हदीस नंबर 82 अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अहम बात फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि उससे अच्छी तरह समझ लिया जाए। और जब किसी कौम के पास तशरीफ ले जाते तो उन्हें 3 बार सलाम भी फरमाते। फायदे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास वक्तों में 3 बार सलाम करने का अमल था। जैसे किसी के घर में आने की इजाजत तलब करते वक्त ऐसा होता था, या एक बार सलाम इजाजत के लिए, दूसरा जब उनके पास जाते और तीसरा जब उनके पास से वापस होते। आम हालात में 3 बार सलाम करना आपके अमल से साबित नहीं। हदीस नंबर 82 सही बुखारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 21 अपनी लौंडी और घर वालों को तालीम देना। अबू मूसा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनको दुगुना सवाब मिलेगा। एक वो आदमी जो अहले किताब में से अपने नबी पर और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह और अपने मालिक को का हक अदा करता रहे, और तीसरा वो जिसके पास उसकी लौंडी हो जिससे ताल्लुकात कायम करता हो, फिर उसे अच्छी तरह तालीम और अदब सिखा कर आजाद कर दे, उसके बाद उससे निकाह कर ले तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 83 सही बुखारी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब
22 इमाम का औरतों को नसीहत करना। हदीस नंबर 84 इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मर्दों की सफ से औरतों की तरफ निकले और आपके साथ बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ कि शायद औरतों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, इसीलिए आपने उनको नसीहत फरमाई और सदका व खैरात देने का हुक्म दिया तो कोई औरत अपनी बाली और अंगूठी डालने लगी और बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उन जेवरात को अपने कपड़े में जमा करने लगे। फायदे मालूम हुआ कि सदका और खैरात के लिए शौक दिलाना और सिफारिश करना बड़े सवाब का काम है। औरतों को अपनी अंगूठी, छाला, हार, गलूबंद और वालिया पहनना जायज है। हदीस नंबर 84 सही बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 23 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हासिल करने के लिए हिर्स मुकाबला करना। हदीस नंबर 85 अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ये रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपकी सिफारिश से कौन ज्यादा हिस्सा पाएगा? तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा, मेरा ख्याल था कि तुमसे पहले कोई मुझसे ये बात नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुझे हदीस का बहुत हिर्स है। क़यामत के दिन मेरे सिफात से सबसे ज्यादा खुश किस्मत वो आदमी होगा जिसने अपने दिल या साफ नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। फायदे दिल से कलमा या इखलास कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, क्योंकि जो आदमी शिर्क करता है उसका सिर्फ जुबानी दावा है, दिल से उसका इकरार नहीं करता। हदीस नंबर 85 सही बुखारी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 24 इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा। हदीस नंबर 86 अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला इल्म दिन को ऐसे नहीं उठाएगा कि बंदों के सीनों से निकाल ले, बल्कि अहले इल्म को मौत देकर इल्म को उठाएगा। जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे और उनसे मसाइल पूछे जाएंगे, तो वो बगैर इल्म के फतवे देकर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। फायदे इससे ये भी मालूम हुआ कि दीनी मामलात में फुजुल राय कायम करना और बिला वजह प्रयास करना मजमत के लायक है। हदीस नंबर 86 सही बुखारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 25 क्या औरतों की तालीम के लिए अलग दिन मुकर्रर किया जा सकता है। हदीस नंबर 87 अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि चंद औरतों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मर्द आपसे फायदा उठाने में हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसीलिए आप अपनी तरफ से हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दें। आपने उनकी मुलाकात के लिए एक दिन का वादा कर लिया, चुनांचे उस दिन आपने नसीहत फरमाई और शरीयत के अहकाम बताए। आपने उन्हें जिन बातों की तलकीन फरमाई उनमें एक ये भी थी कि तुम्हें से जो और औरत अपने 3 बच्चे आगे भेज देगी तो वो उसके लिए दोजख की आग से पर्दा बन जाएगी। एक औरत ने अर्ज किया, अगर कोई 2 भेजे तो आपने फरमाया कि 2 का भी यही हुक्म है।
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں یہ زیادہ ہے کہ وہ 3 بچے جو گناہ کی عمر یعنی جوانی تک نہ پہنچے ہو۔ فائدے: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ صبر سے کام لے تو وہ بچے قیامت کے دن جہنم سے اوٹ بن جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک بچہ بلکہ بچہ بھی جہنم سے رکاوٹ کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 87 صحیح بخاری۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 26۔ ایک بات سننے کے بعد سمجھنے کے لیے دوبارہ اسی کو پوچھنا۔ حدیث نمبر 88۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا حساب ہو اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ حساب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ضرور تباہ ہو جائے گا۔ فائدے: معلوم ہوا کہ اگر دینی مسئلے میں کسی کو شک ہو تو سوال کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 88 صحیح بخاری۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 27۔ چاہیے کہ موجود غیر حاضر کو علم پہنچا دے۔ حدیث نمبر 89۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دن ایک ایسی بات محفوظ کی جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے اسے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مکہ میں لڑائی اور جھگڑا کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے مکہ میں مار کاٹ کرے یا وہاں سے کوئی پیڑ کاٹے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال لڑائی کرنے سے جھگڑے کو جائز قرار دے تو اس سے کہا دینا کہ اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت تھی اور آج اس کی اجازت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو آدمی یہاں حاضر ہے اس سے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ حدیث نمبر 89 صحیح بخاری۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ۔ حدیث نمبر 90۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ فائدے: یہ وعدہ ہر طرح کے جھوٹ کو شامل ہے۔ جو لوگ ترغیب اور ترہیب کے بارے میں بے اصل حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ اسی دائرے میں آتے ہیں۔ حدیث نمبر 90 صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد